Hello, good morning class 4 students. Welcome to your English class. Today, as we have completed the hard words of our unit 7, the first unit of the FA2 course, we are going to start our story of the chapter. The name of the chapter, as you know, is the Tuntun Town Musicians. We already know what is the meaning of Tuntun Town Musicians, as we have discussed the title in the first video. Again, Tuntun Town is the name of a town and musicians are the people who play the music. So, we are going to start with the story today. Are you able to see the screen? See here on the screen there is a picture of 4 animals walking on the road. Also, they are singing something. You can see, right? Which animals we are here seeing? The first one is a donkey, then a cock, then a dog and a cat. Here in the activity 1A, we are asked about it. See here everyone on the screen. Question A. Which animals can you see in this picture? So what are we going to write in that? Pay attention on the screen. It is written, I can see a donkey, comma, a cock, comma, a dog and a cat in the picture. Again, I can see a donkey, a cock, a dog and a cat in the picture, right? All the animals are the part of our story. Question B. Do you know any story about these animals? Come forward and narrate the story in the class. We all are having the knowledge about some of the stories of each of the animal, right? You may be knowing a story about the donkey or a cock or a dog and a cat, and if not, nowadays we are having the facilities, we are having internet, we are having Google, so search on the Google and know about the stories of these animals. Also you can ask your parents to tell you the story of these animals. Whenever we are going to meet into the class, we will discuss these stories one by one, okay? Everyone will get the chance to narrate the story, so be prepared with that stories. Question C. Do you know how animals are useful to us? Speak about their usefulness. Animals हमें useful होते हैं कि नहीं? Yes, each animal is useful to us. For example, what does cow do for us? We get milk from the cow. We get milk from buffalo. Then the animals like donkey, horse, bull are used in the farm, in the hard work with the farmers, right? So every animal is useful to us in a different manner, and we should be grateful to that animals for their help. We should take care of them, we should love them. We are not only to use them, okay? We should take care of them along with using them. Question D. Come forward and make an animal sound. Ask the class to guess which animal it is. हमें पता होता है ना कि अलग अलग एनिमल साउंड्स कैसे बनाते हैं. हम करते हैं ना फन, अलग अलग एनिमल्स के साउंड बना के अपने फ्रेंड्स को डराते हैं. अ लायन साउंड, देन अ डॉग साउंड, अ कैट साउंड. इट इज़ वेरी easy, we all know it. So whenever we will meet in the class, we will take this game. Each of us will come on the stage, will make an animal sound and the others will guess. Okay. Now come on the next page, the activity 2. Listen to the part 1 of the story as your teacher reads it. Teacher is going to read. You all have to pay attention. Keep your finger on it. Number 1, paragraph. Once
There was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. क्या बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में? स्टार्टिंग में एक फार्मर था जिसके पास एक डोंकी था. दैट डोंकी वॉज वेरी ओल्ड. डोंकी बूढ़ा हो गया था. डोंकी हैड बिकेम ओल्ड. लेकिन उस डोंकी ने इतने साल तक, जब तक वो काम कर पाता था, हार्डवर्क कर पाता था, उस फार्मर के लिए उसने बहुत सालों तक हार्डवर्क किया था. देन नेक्स्ट वन सेंटेंस. नाउ व्हेन ही बिकेम ओल्ड द फार्मर सेड, यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी, गेट आउट फ्रॉम हियर. अब क्या हुआ? जब वो डोंकी ओल्ड हो गया तो फार्मर ने क्या बोला कि यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी. क्या बोल दिया डोंकी को कि अब तुम मुझे यूजफुल नहीं हो. गेट आउट फ्रॉम हियर. डोंकी को घर से निकाल दिया ऐसा बोल के. पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड. ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट टुवर्ड्स द सिटी. अब ये सुन के डोंकी तो बहुत सैड हो गया. हो ही जाएगा ना, जब आप इतने सालों तक किसी के लिए इतने खुशी से काम करते हो, फिर अगर वो आपके ओल्ड हो जाने पर आपको ऐसे अचानक से निकाल दे तो डोंकी तो सैड हो ही जाएगा ना, राइट? सो डोंकी वॉज वेरी सैड. ही लेफ्ट द फार्म. उसने वो फार्मर का फार्म छोड़ दिया. एंड वेंट टुवर्ड्स द सिटी. और सिटी की तरफ चला गया, दूसरे सिटी की तरफ. उस फार्मर के फार्म को छोड़ के चला गया. Then what is written? He walked alone and he sang. अकेले अकेले रोड पे सैड होके चल रहा था और साथ में गाना गा रहा था. What he was singing? Look here. I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. ये सॉन्ग गा रहा था डोंकी रोड पे. हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा ना, सभी एनिमल्स कुछ गाते गाते जा रहे थे. सभी एनिमल्स यही सॉन्ग गा रहे थे. क्या है इस सॉन्ग में? लेट्स अंडरस्टैंड. आई एम वेरी ओल्ड यू सी. सब लोग गा रहे थे कि हम काफ़ी ओल्ड हो गए. अभी तो ये डोंकी गा रहा है, आई एम वेरी ओल्ड यू सी. मैं काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ, आप देख रहे हैं. नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी. किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है, कोई मेरी चिंता नहीं करता है. आई हैव नो होम और हाउस टू गो. मेरे पास कोई घर नहीं है जहाँ पे मैं रहने जा पाऊँ. वॉट विल आई डू? आई डो नॉट नो. अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता. ऐसे सॉन्ग गाते गाते डोंकी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड. नेक्स्ट पैराग्राफ. एज ही वॉकड अलॉन्ग an idea came to his head. I know what can I do. अब क्या हुआ? धीमे धीमे वो तो चल रहा था ये गाना गाते गाते. अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया. क्या सोचा उसने मन में? I know what I can do. अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. अभी उसे पता चल गया था कि उसे क्या करना है. क्या आइडिया आया होगा उसके मन में? लेट्स सी. आई कैन गो टू टुनटुन टाउन एंड बिकम अ म्यूजिशियन. क्या सोचा उसने कि अब मैं जाऊंगा टुनटुन टाउन में. हमने डिस्कस किया था ना, टुनटुन टाउन इज द नेम ऑफ वन टाउन. तो ये डोंकी ने ऐसा डिसाइड किया कि अब मैं टुनटुन टाउन चला जाऊंगा और वहाँ पे जाके क्या बनूंगा? एक म्यूजिशियन बनूंगा. सो ही वॉकड अलोंग. और ये सोच के आगे बढ़ने लगा. अ लिटल लेटर ही सॉ एन ओल्ड डॉग asleep on the side of the road. अब जब वो आगे बढ़ा, थोड़े आगे जाके उसको कौन दिखा? ओल्ड डॉग asleep on the side of the road. एक बूढ़ा डॉग, एक ओल्ड डॉग दिखा जो रोड के साइड पे asleep. हमने डिस्कस किया ना, स्लीप मतलब सोना. तो वो डॉग सो रहा था रोड पे, साइड पे. तो डोंकी की नज़र उस पर गई. डोंकी ने उससे पूछा, व्हाट इज़ रॉन्ग माई फ्रेंड?
आस्क्ड द डोंकी। डोंकी ने उस डॉग से पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग माई फ्रेंड, क्या हुआ मेरे दोस्त। माई मास्टर हैज थ्रोन मी आउट एज आई एम ओल्ड एंड स्लाइटली डेफ, सेड द डॉग सैडली। अब उस डॉग ने क्या जवाब दिया कि मेरे मास्टर ने, मेरे ओनर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैं ओल्ड हो गया हूँ एंड आई एम स्लाइटली डेफ। डेफ का मीनिंग क्या है? द पर्सन हु कैन नॉट हियर। जो इंसान या कोई एनिमल सुन नहीं सकता है उसको डेफ बोलते हैं हम। स्लाइटली डेफ, वो डॉग क्या बोल रहा था कि मैं स्लाइटली डेफ हो गया हूँ, थोड़ा सा डेफ हो गया हूँ, मुझे कुछ कुछ बातें सुनाई नहीं देती है, इसलिए उसके मास्टर ने उसे घर से निकाल दिया था। एंड ही सैंग। अब कौन गा रहा है ये सॉन्ग? द डॉग इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो, व्हाट विल आई डू, आई डू नॉट नो। जो सॉन्ग वो डोंकी गा रहा था वही सेम सॉन्ग अब ये डॉग भी गाते गाते रोड पे चल रहा था। वाई डोंट यू कम विथ मी, सेड द डोंकी। अब डोंकी ने क्या पूछा उस डॉग से? वाई डोंट यू कम विथ मी, क्यों तुम मेरे साथ चलते नहीं हो? मेरे साथ चलो, मैं टुनटुन टाउन जा रहा हूँ। द डॉग लाइक्ड द आइडिया ऑफ गोइंग टू टुनटुन टाउन एंड बिकमिंग अ म्यूजिशियन। डॉग को तो वो आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, मैं तो जाऊँगा तुम्हारे साथ टुनटुन टाउन एंड विल बिकम अ म्यूजिशियन, मैं भी तुम्हारी तरह एक म्यूजिशियन बनूंगा वहाँ पे जाके। नाउ दे वॉक्ड टुगेदर। अब दोनों साथ में चलते चलते टुनटुन टाउन के लिए निकल गए। अब स्टोरी में क्या होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।